بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو، کل ایک مجھے میسیج آیا جس میں جھوٹ والا المعروف سچ والا، اس نے ایک سورۃ العقل کے نام سے بنا کر اپنے فالوورز کو اور اپنے جو ہے وہ متبعین کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس نے دیکھیں اسلام کا جو چیلنج تھا وہ چیلنج توڑ دیا اور ایک صورت بنا لایا ہے۔ تو اس صورت کا جواب دینے سے پہلے یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کریم نے جو چیلنج دیا ہے وہ ماضی میں بھی تھا اور آج بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا، اور اس چیلنج کا جواب نہ تو ماضی میں کبھی آیا نہ موجودہ دور میں اور نہ ہی مستقبل میں کبھی آئے گا۔ دوستو، یہاں پر جو قرآن نے چیلنج کیا، سب سے پہلے وہ میں آیت کریمہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کلام میں، قرآن میں ذرہ برابر بھی شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا، تو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا بھی بلا لاؤ اور اس جیسی ایک صورت تو بنا کر دکھاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اور اگر نہ کر پاؤ اور قرآن نے یہ پیشین گوئی کی کہ تم ہرگز قیامت تک نہ کر پاؤ گے، تو پھر اس آگ سے ڈرو کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوستو، یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ یہاں پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قرآن نے مختلف ادوار میں مختلف چیلنج دیے۔ پہلے پورے قرآن جیسی کتاب لانے کا چیلنج ہوا، اس کے بعد 10 صورتوں کا چیلنج ہوا، اور یہ آخر میں اللہ کریم نے ایک صورت قرآن کی مثل لانے کا چیلنج دیا۔ تو یہاں پہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یاد رکھیے کہ قرآن کی مثل لانے کے لیے اس کلام کا قرآن کے ہم پلہ ہونا، اس کا مماثل ہونا، یہ شرط ہے۔ اب ملحدین کرتے کیا ہیں کہ صرف عربی عبارت پر اپنی توجہ کو مرکوز کر کے، ہم قافیہ بندی کا خیال کر کے اور ایک عربی عبارت جوڑ کر، کچھ الفاظ ادھر سے پکڑے کچھ ادھر سے پکڑے، ایک عربی عبارت جوڑ کر پیش کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن کے چیلنج کو توڑ دیا، ہم نے قرآن کے چیلنج کو پورا کر دیا۔ تو یہاں پہ مثلیت یاد رکھیے، مثلیت لانے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے، تو مثال میں لائی گئی چیز اور جس چیز کے لیے مثال لایا جا رہا ہے، ان دونوں میں مماثلت کی شرائط کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی جس درجے کا وہ کلام ہے، قرآن ہے، آپ جو اس کی تمثیل لے کے آ رہے ہیں، جو اس کا مماثل لے کے آ رہے ہیں، تو اس کا اسی لیول کا ہونا بھی ضروری ہے۔ میں یہاں پر شیخ محمد حامد صاحب کے اس آیت پر جو تفسیر ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فیہا من العلم والہدایت والنور، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں علم بھی ہے، ہدایت بھی ہے، گائیڈنس بھی ہے، اور یہ روشنی بھی ہے۔ والاحکام والنبأ الماضین کأنک حاضر معہم، اس میں احکام بھی ہیں، اس میں ماضی کی خبریں بھی ہیں، اور یہ خبریں پڑھنے والا ایسے فیل کرتا ہے گویا وہ ماضی میں خود حاضر ہو، ان واقعات میں وہ خود حاضر ہو۔
و अहवाल आखिरती का अन्ना का शाहिदुल्लाहा, और इसमें आखरत के ऐसे अहवाल भी हैं गोया कि आपको वो पढ़ के यूँ महसूस होता है कि आप उन अहवाल का मुशाहदा कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। ला तमिल्लुहा नफूसु महमा कर्ररतहा, इससे जो पढ़ने वाला है उसका जो दिल है वो मलाल महसूस नहीं करता जब जब वो इसका तकरार करता है। अमूमी तौर पे होता ये है कि आप एक किताब को पढ़ लें, उसके एक चैप्टर को पढ़ लें, आप दूसरी मरतबा पढ़ें, तीसरी मरतबा पढ़ें, हद आप 4 से 5वीं दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको उस चैप्टर से जो है वो कराहत महसूस होगी और आपका दिल जो है उससे मलाल महसूस करेगा। लेकिन ये किताब कुरान जो है इसकी क्वालिटी ये है कि आप इसको पूरी ज़िंदगी इसमें तकरार करते रहें, पढ़ते रहें, लेकिन कभी भी आपको इससे मलाल नहीं आएगा। फिर फरमाते हैं वला तसअमुहल कुलूबु महमा रद्ददतहा, कि और जो इंसान है उसका दिल इससे कभी भी गाफिल नहीं होता और उसको इससे कोफ्त नहीं आती जब जब वो इनका बार बार पढ़ता है, इसका तकरार करता है। और फिर फरमाते हैं ताजिदु फ़ीहा लज़्ज़तन मुतजद्दिदतन, कि तू इसमें इस कुरान की आयत में हर दफ़ा पढ़ने में एक नई लज्जत को महसूस करेगा। जब भी आप इसको पढ़ोगे आपको नई एक शरीनी मिलेगी। व ताजिदु लहा हलावतम मुतशाबिहा, और आप इसमें नई मिठास को पाएंगे। व शग़फ़म बिहा, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप इसमें मशगूल होते जाएंगे। व मुतआतन, आपको नई से नई चीज़ मिलेगी। व नईमा, नेमत मिलेगी। व रूहम व रैहाना, इसमें आपको एक नई रूह और नई खुशबू मिलेगी। ये कुरान की वो खुसूसियात हैं। और फिर इसकी हिफाजत, अल्लाह ताला का इस कलाम को आसान कर देना कि 6-7 साल का बच्चा हमारे मुशाहदे में है कि पूरी किताब को ज़बर और ज़ेर के साथ वो हिफ्ज़ कर लेता है। जी दोस्तों, तो कुरान की ये सिफ़ात हैं और इन सिफ़ात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब आतुलहिद ने ये सूरत बनाई है और इसको ज़रा देखते हैं। आपको स्क्रीन पर ये सूरत नज़र आ रही होगी। इसका नाम इसने सूरतुल अक़ल रखा है और शुरू में लिखता है कि सूरतुल अक़ल हिंदियतुन वहिया सलासु आयातिन। मतलब ये है कि ये सूरह अक़ल है जो कि इंडिया से, हिंदुस्तान से बनाई गई है, जिसका ताल्लुक़ हिंद से है और इसमें 3 आयात हैं। सबसे पहली बात मोहतरम ये है कि आपको इसका नाम सूरतुल अक़ल रखना ही नहीं चाहिए था, आपको इसका नाम सूरतुल नक़ल रखना चाहिए था, इसलिए कि ये आपका कोई अपना कलाम नहीं है, ये तो कॉपी आपने किया हुआ है और उसको आपने सूरह जो कुरान मजीद की सूरतुन नस्र है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ, आपने उस पैटर्न के ऊपर वहाँ से ये कलाम चोरी करके और अल्फाज की जिद्दत देकर ये ज़ाहिर किया कि जनाब मैंने सूरत बना लिया है। तो मोहतरम ये सूरतुल अक़ल नहीं है, जो आप इसको नाम देना चाहते हैं वो सिरे से ही जो है वो आपका ये दावा भी बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाता है कि सूरतुल अक़ल नहीं बल्कि ये सूरतुल नक़ल होता तो बेहतर होता। फिर इसके बाद लिखता है कि बिस्मिल अक़ली अक़लिल वायिन नूर। दोस्तों इसमें इतनी ज़्यादा गलतियां हैं कि इसमें अगर ये मैं वीडियो 1 घंटा भी बनाता रहूं तो मेरा ख्याल है कम होगा। अब यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की नकल उसने की है बिस्मिल अक़ली। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप कुरान से कॉपी कर रहे हैं तो फिर आपको इसको कॉपी करने के बाद अल्फाज जदीद लाकर ये दावा करना कि ये कुरान के मुमासिल है, तो हर जी शऊर आदमी ये समझेगा कि ये चुराया हुआ कलाम तो हो सकता है लेकिन ये कुरान के मुमासिल कलाम आप इसको नहीं कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अल अक़ल, ये जनाब ने इसको मौसूफ़ के दर्जे पे रखा है और अल वा
वाई और अन्नूर ये सिफ़तें बनाई हैं। क़यामत तक के लिए आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि आप लुगत की किसी किताब से भी अलवाई और अन्नूर को सिफ़त का सीगा साबित करके दिखाएं। यानी आप तासुब में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको ये नहीं पता कि आप जिसकी कॉपी कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें अल्लाह इसमें ज़ात है, अर्रहमान और अर्रहीम दो सिफ़ात हैं। तो मुरक्कबे तौसीफ़ी की तकमील के लिए मौसूफ़ के साथ सिफ़त का होना ज़रूरी है। ये जो आप बेरब सा कलाम लेके आए हैं, अल अकल के आगे अलवा ये लगा दिया और अन्नूर लगा दिया और तर्जमा ये कर दिया कि जब यानी अकल और शऊर और पता नहीं जो भी आप इसका माना ले रहे हैं, माना तो इसका कोई बन नहीं रहा। बहरहाल तो मौसूफ़ के साथ ये सिफ़त आपने लगाई है, जबकि अलवाई और अन्नूर सिफ़त का सीगा हरगिज़ नहीं है। उसके बाद जी ये पहली आयत अपने तौर पे बयान करता है कि इज़ा जाआ नूरुल अक्ल वल वाई। अब यहाँ पर जनाब की इल्मी कैफियत का ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि पहले जो इसने बिस्मिल अक्लिल वाई जब कहा था तो इसने अलवाई को अकल की सिफत बनाया था, जबकि यहाँ नीचे इज़ा जाआ नूरुल अक्ल वल वाई, यहाँ अकल और अलवाई एक जगह सिफत बना के लिख दिया और दूसरी जगह इसको अतफ डाल दिया अलवाई को वाव के ज़रिए से, जबकि अतफ जो होता है वो मुगायरत के लिए आता है, यानी जिस पे आप अतफ कर रहे हैं उसका ये गैर होना चाहिए और ऊपर आप उसका गैर क्या उसकी अपने तय सिफत लगा चुके हैं। तो ये बेरबत सा कलाम, इसको कुरान के मैं समझता हूँ कि मुमासिल क्या इसको, ये नकल तो है लेकिन कुरान के मुमासिल हरगिज़ भी कहीं से भी ये नज़र नहीं आता। अच्छा फिर आगे चलिए तो मोहतरम एक और आयत यहाँ पे लिखते हैं वराइत नासा यखरुजून मिन दीनिल अरबी अफवाजा। पहली बात तो ये है कि दीनुल अरब कुरान ने जो सूरह नसर में कहा वराइत नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफवाजा, अल्लाह के दीन से, और ये अल्लाह का दीन मुराद ये आलमगीर है। आप भी इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि ये सिर्फ़ अरब के लिए दीन नहीं है और अरबियों ही के लिए ये स्पेशलिटी नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल रिलीजियस है, मज़हब है। तो इसको आप दीन इस्लाम को दीनुल अरब कहना ये एक फोहश, आपकी इसको इल्मी ख़यानत कहा जाए या इसको गलती कहा जाए, इसका डिसीजन भी आप खुद ले लीजिएगा। युखरिजूना मिन दीनिल अरबी, आप अरबी ग्रामर से मुझे नहीं लगता कि जनाब को वाकफियत होगी, क्योंकि मिन जो प्रपोजिशन है, मिन हरफ जार है, इब्तदाए गायत के लिए यहाँ आया है, हालांकि खुरूज अन के सिले के साथ यहाँ पे मुतहक्कक होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो आप खुरूज कर रहे हैं, आपके बकौल फ़ौज दर फ़ौज और रियलिटी और ग्राउंड रियलिटी क्या है इसमें, तो उस पर तो अभी मैं बात नहीं कर रहा। वो आपके बकौल है कि फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम से निकल रहे हैं, उस पर भी इंशाअल्लाह मैं कभी वीडियो बनाऊंगा और आपको आईना दिखाऊंगा कि फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में लोग दाखिल हो रहे हैं या कि इस्लाम से निकल रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे मैं अभी आपको इस सूरत की लफ्ज़ी गलतियाँ बता रहा हूँ। तो मिन गायत के लिए आता है, मिन इब्तिदाई गायत के लिए, और खुरूज के साथ अन जो है वो के साथ आपको यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए था। यहाँ पे भी ये आपकी फोहश गलती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि अल्लाह करीम का जो चैलेंज है 1400 साल से बरकरार है और अल्लाह के फ़ज़ल से क़यामत तक भी बरकरार रहेगा। ये जिस दौर में कुरान नाजिल हुआ
تب بڑے بڑے شعراء کے جو ہے وہ مقابلے منعقد ہوا کرتے تھے۔ عکاظ کے مقام پر ایک میلہ لگا کرتا تھا، لوگ اپنی شعر و شاعری کے وہاں پہ مقابلے ہوا کرتے تھے۔ تو اس دور کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ قرآن کی مثلیت کے لیے جو ہم کلام لے کے آئیں گے تو اس کا ہر جہت سے کلام کے مثل ہونا لازمی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عربی عبارت کو لے آئے، قرآن کی حفاظت کو، قرآن کے آسان پن کو، قرآن کی لذت اور شرینی کو، اور قرآن کے ماضی اور مستقبل کے معاملات کو بیان کرنا، یہ تمام کی تمام کوالٹیز ان میں بھی ہمت نہیں تھی کہ قرآن کے مماثل لے کر آتے۔ تو آج کے یہ جاہل، جھوٹ والا، المعروف سچ والا کہ بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔